Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our next topic, that is the patents. Uh, you must have some knowledge about these patents. These are the intellectual property rights that are provided by the government. They are provided by the government to the inventor of an invention for a limited period of time. What is patent? Basically, these are the exclusive rights provided to the inventor by the government. These are provided for a limited period of time. What basically it does excludes others from making, selling, or offering that product for sale. That means the patentee has the rights either if he wants to sell the product can be sold, otherwise it will not be sold. In Pakistan, 2000 Patent Ordinance 2000 was passed, and recently Patent Act 2010 is passed that provide exclusive rights to the inventor of a patent. So the right now the Patent Act 2010 is going on. Okay, now we have basically three different types of patents. First one is utility patent. Second one is design patent, and the third one is plant patent. Utility patent, design patent and plant patent. Okay, utility patent में हमारे पास क्या है? It is used for the processes, formulas, machines, manufacturers or the composition of matter. Utility patent किस किस चीज़ पर हमारे पास लगेगा? It is for the processes, it is for formula, it is for the composition of matter, for example enzymes, vaccines, proteins, it is for that. So utility patent में हमारे पास processes आते हैं. If person designs some process or he did make some formula for a specific calculation, he is the patentee of the utility patent. Next one is design patent. Now for design patent, as the name indicates, it is used for the design of a product. So it is for the original or ornamental design of a product. For example, many machines have specific designs, so for that we use design patent for to check the original or ornamental design of the product. Next one is plant patent. Now these plant patents are not for the normal plant parts. ये किस चीज़ के लिए होगा? For example, if a person has developed a transgenic plant, उस transgenic plant पर उसको क्या मिल सकता है? Patent grant किया जा सकता है. So for the novel, non-obvious or transgenic plants, उस पर हम क्या provide करते हैं? Plant patent provide करते हैं. And transgenic प्लांट्स के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं? प्लांट पेटेंट प्रोवाइड करते हैं. सो दीज आर basically the three types of patents. Utility patent is for processes or formulas, design patent is for the design, and plant patent is for the transgenic plants type species. Now not everyone can apply for a patent. The next is who can apply for a patent.
द फर्स्ट पर्सन दैट कैन अप्लाई फॉर द पेटेंट इज़ वो बंदा हो जिसने उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है, ठीक है, द ओरिजिनल और द ट्रू इन्वेंटर ऑफ द product. The second person can be who is the assignee of the inventor, and the third one is the legal representative of a deceased person. First one is the true inventor. Second one is the assignee of the inventor, and the third one is the representative of deceased person. Okay, the true inventor and the assignee of inventors can apply for a patent. However, if for example एक बंदे ने एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर ली है एंड ही डाइड, ठीक है, इफ ही डाइड तो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है ही कैन अप्लाई also apply for the grant of these patent rights. So these three persons can apply for the patent. Next is what can be patented. Okay, for a product to be patented, उसके लिए हमारे पास होती हैं 3 specific qualities. सबसे पहली क्वालिटी तो ये होगी कि वट एवर इज टू बी पेटेंटेड शुड बी नॉवल, ठीक है. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि एक दफ़ा पीसीआर मशीन डिज़ाइन हो चुकी है, उसको पेटेंट ग्रांट हो चुका है, ठीक है, द अदर पर्सन मेक्स दैट मशीन और वो उस पेटेंट के लिए अगेन अप्लाई कर ले, ठीक है. ऑलरेडी एक पीसीआर बन चुका है, आप उसके लिए दोबारा पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है. सो द फर्स्ट क्वालिटी of the product to be patented is that it should be novel. Second is that it should involve inventive step. Okay. ऐसा नहीं है कि आपने किसी पुराने बंदे ने साइंटिस्ट से कोई प्रोसीजर फॉलो कर लिया है, आप उसी का प्रोसीजर दोबारा फॉलो करके एक न्यू चीज़ बना लो एंड यू हैव द राइट टू पेटेंट इट. आप उसको पेटेंट नहीं कर सकते तब तक जब तक आपने उसमें कोई अपनी इन्वेंशन ना लेकर आए हों, उसमें अपने लिए कोई खुद से इन्वेंटिव स्टेप्स ना इंक्लूड किए हुए हों. नेक्स्ट इज दैट इट शुड हैव इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. हम एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या हो, उसकी कुछ ना कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो. जब हम उसको इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाएं तो वो कुछ पॉपुलेशन को सर्व करे, किसी कम्युनिटी को सर्व करे, वो उसको क्या हो, कोई भी ह्यूमन फ्रेंडली प्रोडक्ट हो, तो तब आप उसको पेटेंट कर सकते हो. अगर हमारे पास उसका कोई और वेलफेयर नहीं है, आपने उसको अपने बेनिफिट के लिए बनाया है, तो आप ऐसी चीज़ को पेटेंट नहीं कर सकते. कोई ना कोई पॉपुलेशन को वो सर्व करेगा, तब जाकर आप उसको उठाकर पेटेंटेबल कह सकते हैं. ओके. इसी तरह हम पेटेंट उन चीज़ों को कर सकते हैं जिसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है. अब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तब होगी जब वो किसी पॉपुलेशन को सर्व करेगा. इसके अल्टरनेट में अगर हम देखें दैट वर्ड कैन नॉट बी पेटेंटेड, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि दोज इन्वेंशंस दैट आर हार्मफुल टू द पब्लिक. कोई भी ऐसी इन्वेंशन जो पब्लिक को हार्मफुल है, आप उसके लिए पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. इसके अलावा जितना म्यूज़िकल वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है, लिटरेसी है, उसको हम पेटेंट नहीं कर सकते, ऑल्दो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं अदर वे ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से. ओके. राइट्स ऑफ पेटेंटी. ओके. इन पेटेंटीज को कुछ राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. उसके अंदर 2-3 बड़े सिंपल से राइट्स हैं, ठीक है. पहला राइट तो ये है कि आप के पास ये राइट है कि आप अगर अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो करें, अगर आप उसको सेल नहीं करना चाहते तो आप जस्ट नॉट फॉर सेल करके मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है.
सबसे पहला राइट ये है कि इट प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम सेलिंग और मेकिंग। ठीक है, आप अपने पास ये आप राइट रख सकते हैं कि आप किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आप उसकी कॉपीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इसके अलावा सेकंड इज दैट सेल टू थर्ड पार्टी। आपके पास आपने वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर ली है, आप आपको उस पर इनपुट लगा है, टाइम लगा है, फाइनेंस लगी है, उस सारे को ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर सकते हो। क्योंकि आपका प्रोडक्ट नॉवल है, वो आपके प्रोडक्ट को हाई रेट पर परचेज कर लेगा। ठीक है, इन दैट वे आपको अपना जो प्रोडक्ट बना हुआ है उससे क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो आपके पास ये राइट है कि आप अपने इस प्रोडक्ट को किसी थर्ड पार्टी को सेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ठीक है, एंड थर्ड जो है दैट इज द कोर्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट इन्फ्रिंजर। ठीक है, थर्ड आपके पास क्या पॉइंट आता है कि आपको ये राइट्स ग्रांट कर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी को अपना ये नहीं सेल करना चाहते, वो किसी और वे से आपका फार्मूला चुरा कर आपकी तरह का एक मशीन बना लेता है। ठीक है, तो आपके पास ये राइट है कि आप उसके अगेंस्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन गो फॉर कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इन्फ्रिंजर्स। तो पेटेंटी के पास ये तीन बेसिक राइट्स हैं कि वो अपने प्रोडक्ट की सेलिंग या मेकिंग को प्रिवेंट कर सकता है, अपने प्रोडक्ट की थर्ड पार्टी को सेल से प्रिवेंट कर सकता है, और ये फॉर एग्जांपल अगर कोई उसका ये सारा फार्मूला चुरा कर अपने लिए वही मशीन या प्रोडक्ट बना लेता है तो वो उसके अगेंस्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स कर सकता है। ओके, लास्ट हेडिंग है इसमें प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ पेटेंट। ओके, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ पेटेंट सिंपल सा है कि आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस है। पाकिस्तान के केस में हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस है लाहौर एंड कराची में। ठीक है, तो आप वहाँ पर अपने जो भी प्रोडक्ट आपने बनाई है आप उसकी सारा का सारा रिपोर्ट करने के बाद आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है आप उसके आउटकम्स, ड्रॉबैक्स, एडवांटेजेस, कौन सी पॉपुलेशन को वो सर्व करता है, उसके फार्मूलाज व्हाट्सएवर सब कुछ आप प्रोवाइड कर देते हैं। सब कुछ आप एक फॉर्म एप्लीकेशन फिल करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस को सेंड करते हैं और वो फिर आपको उसे फीडबैक देकर आपको राइट्स गवर्न करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस patent. That is so simple, and I guess you would have some knowledge about it. So thank you so much.